بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا، اس کی صرف ایک لڑکی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، اس کی ہر خواہش پوری کرتے اور ہر وقت اس کے ناز برداری میں لگے رہتے تھے۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن وہ اپنے باغ میں ٹہل رہی تھی کہ ایک غائب ہو گئی۔ محل میں کوہرام مچ گیا، ملازم اور باندیوں میں ہلچل پڑ گئی۔ ملازم اپنے حواس کھو بیٹھے تھے، ہر جگہ اسے تلاش کیا، مگر شہزادی کا اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ بادشاہ اور ملکہ کا مارے غم کے برا حال تھا۔ وہ ان کی ایک لوتی اولاد تھی اور محل کی رونق تھی۔ ملکہ کو تو ایسے چپ لگ گئی تھی کہ وہ بت بن کر رہ گئی تھی۔ آخر بادشاہ نے ملک بھر میں اعلان کرا دیا کہ جو کوئی شہزادی کو ڈھونڈ کر لائے گا اس سے شہزادی کی شادی کرا دی جائے گی۔ ملک بھر کے لوگوں نے اعلان سنا۔ بہت سے فوجی افسر، شہزادے، سوداگروں کے بیٹے، امیروں کے لڑکے اپنی قسمت آزمانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ شہزادی کو ڈھونڈنے نکلے تاکہ اس سے شادی کر سکے۔ شہزادی اتنی خوبصورت تھی کہ ہر شخص اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب دور دراز کے ملکوں تک گئے، جنگلوں پھرے، مگر شہزادی کا کہیں بھی کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ آخر تک ہار کر بیٹھ گئے۔ بادشاہ کے محل کے قریب ایک غریب لکڑ ہارا تھا۔ اس کا صرف ایک لڑکا تھا جس کا نام حارث تھا۔ اس نے بھی شہزادی کو تلاش کرنے کا ارادہ کیا، مگر اپنے باپ کو اصل وجہ بتانے کی بجائے بہانے بنانے لگا اور کہنے لگا، ابا اب میں کافی بڑا ہو گیا ہوں، اب مجھے بھی کمانا چاہیے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کام کی تلاش میں نکلوں۔ باپ نے بیٹی کی طرف محبت سے دیکھا اور کہا، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوگی، لیکن افسوس کہ پیسہ میرے پاس نہیں۔ تمہارا باپ بڑا ہی غریب ہے، اسی لیے میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا۔ حارث کہنے لگا، نہیں بابا، مجھے تو صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ حارث یہ کہہ کر اپنی امی کے پاس گیا اور امی سے کہا کہ روٹی پکا دیں تاکہ راستے میں اسے تکلیف نہ ہو۔ روٹی ایک رومال میں باندھ کر حارث روزگار کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ چلتا گیا، میدانوں، جنگلوں، صحراؤں سے گزرتا ہوا وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر پہنچا۔ اب وہ بہت تھک گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ کچھ کھا لوں۔ اس نے اپنا رومال کھولا اور کھانے لگا۔ ابھی اس نے کھانا شروع بھی نہ کیا تھا کہ اس کے پاس ایک بوڑھا آم موجود ہوا۔ اس نے سرخ رنگ کی لمبی قبا پہن رکھی تھی، سر پر بڑا سا پگڑ بنا ہوا تھا۔ وہ بڑا دبلا پتلا تھا، بھویں سفید ہو چکی تھی اور وہ تھوڑا تھکا سا لگ رہا تھا۔ بیٹا، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے بھی کچھ کھلاؤ۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اور بڑے میاں جھپٹ کر بیٹھ گئے اور کھانا کھانے کے بعد بڑے میاں نے حارث کا شکریہ ادا کیا اور چلتے چلتے کہا، بیٹے، یوں تو میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، تم نے اس وقت میرا دل خوش کر دیا ہے۔ یاد رکھو، اگر کسی وقت تمہیں میری ضرورت ہو تو تم مجھے ضرور یاد کرنا، میں فوراً چلا آؤں گا۔ میرا نام سرخ پوش ہے۔ یہ کہہ کر بڑے میاں غائب ہو گئے۔ حارث پھر چل پڑا۔ شام ہوتے ہوتے وہ ایک کنویں کے پاس پہنچا۔ بھوک پھر لگنے لگی تھی، یہاں پانی بھی میسر تھا۔ حارث نے سوچا، کھانا کھانے کے لیے یہ اچھی جگہ ہے۔ اس نے اپنا رومال کھولا، کھانے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ ایک اور بوڑھا آدمی آ موجود ہوا۔ یہ بھی ننھا منا دبلا پتلا تھا، ویسے ہی سفید بھویں۔ اس نے ہرے رنگ کی قبا پہن رکھی تھی اور سر پر عجیب وجہ کی پگڑی پہن رکھی تھی۔ کہنے لگا، بیٹا، میں بھی بھوک سے مرا جا رہا ہوں، کیا تم مجھے اپنے ساتھ کھانے نہ کہو گے؟ بڑے میاں نے کہا۔ تو حارث نے کہا، ضرور، اور بڑے میاں کو ساتھ بٹھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں نے کنویں کا میٹھا اور ٹھنڈا پانی پیا۔ اب بڑے میاں نے حارث کا شکریہ ادا کیا اور اجازت چاہی۔ جاتے وقت انہوں نے کہا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اگر تم پر کبھی برا وقت پڑے تو تم مجھے ضرور یاد کرنا۔ میرا نام سبز پوش ہے، بس میرا نام لے کر آواز دے دینا۔ یہ کہہ کر بڑے میاں اٹھ کھڑے ہوئے اور فوراً ہی نظروں سے غائب ہو گئے۔ حارث پھر چل پڑا۔ چل سو چل وہ ایک درخت تک جا پہنچا۔ یہ بڑا گھنا اور سایہ دار درخت تھا۔ آس پاس دور دور تک ہریالی لہلہا رہی تھی، جسے دیکھ کر حارث کی طبیعت خوش ہو گئی۔ وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے درخت کے سائے میں بیٹھا رہا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ کبوتروں کا ایک جھنڈ اڑتا ہوا وہاں آ پہنچا اور حارث کے سر پر منڈلانے لگا۔ اوہو، یہ بھوکی ہیں۔
हारिस ने दिल में सोचा, मुझसे ज्यादा रोटी की इन्हें जरूरत है। इसने फौरन अपना रुमाल खोला, रोटी निकाली और उनके टुकड़े टुकड़े करने लगा। नन्हे नन्हे रेसे करके उसने सामने ही डाल दिए। कबूतरें जमीन पर उतर आई और हारिस के पास आकर बोले, तुम्हारी मेहरबानी के लिए शुक्रिया। हम सब भूखे थे, तुमने हमें खाना खिलाया। अगर तुम्हें कभी हमारी जरूरत हो तो तुम हमें जरूर याद करना। हम जहाँ कहीं भी हों तुम्हारी आवाज सुन लेंगे। ये कहकर कबूतरें रुखसत हुई और दूसरी कबूतरों के साथ उड़ गई। अब शाम होने को थी। हारिस को रात गुजारने के लिए एक ठिकाने की जरूरत थी। वो जल्द से जल्द कोई ऐसी ठिकाना ढूंढ लेना चाहता था जहाँ पर रात आसानी से गुजार सके। कुछ दूर चलने के बाद एक पहाड़ी के दामन में एक गार नजर आया। हारिस ने इस पर नजर डाली। बहुत बड़ा गार था। इसमें दर्जनों भैंस बंधे हुए थे। इसके बावजूद एक ऊंचा सा बड़ा सा चबूतरा था जिसमें 3-4 आदमी आसानी से सो सकते थे। इसने सोचा, इन भैंसों का रखवाला भी जरूर होगा, इसीलिए रात इनके साथ यहीं गुजारना चाहिए। ये सोचकर हारिस अपना बिस्तर निकाला और बिस्तर बिछाने लगा कि तभी एक औरत उस गार में दाखिल हुई और कहने लगी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो बुढ़िया एक जादूगरनी थी। हारिस उनकी बात सुनकर कहने लगा, मैं एक मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से चलकर आया हूँ, थककर चूर हो गया हूँ और रात यहीं गुजारना चाहता हूँ। अगर कुछ हर्ज न हो तो मुझे रात भर यहीं रह लेने दो। हारिस ने हिम्मत करके कहा। तो जादूगर बुढ़िया ने कुछ सोचकर कहा, तुम सिर्फ एक शर्त पर यहाँ रात गुजार सकते हो और वो शर्त ये है कि तुम वादा करो कि सुबह तुम वही कुछ करोगे जो मैं करने को कहूँगी। हाँ ये ठीक है, मैं वादा करता हूँ, हारिस ने बगैर सोचे समझे कहा, क्योंकि वह थकन से बहुत चूर था। उसे आराम के अलावा किसी और चीज से दिलचस्पी नहीं थी। बहरहाल मामला तय हो गया और जादूगर बुढ़िया वहां से चली गई। दूसरे दिन हारिस अभी जागा ही था कि बुढ़िया आ पहुंची और हुक्म देकर कहने लगी, यहाँ से जाने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना है। इस गार को अच्छी तरह से साफ कर डालो, फिर भैंसों के आगे नया चारा डालो और ये सारे काम मेरे आने से पहले कर डालो। अगर तुम ये सारे काम नहीं कर सकोगे तो ख्याल रखो मैं तुम्हारा गला घोंट डालूंगी। ये कहकर जादूगर बुढ़िया वहां से चली गई। अब हारिस बड़ा घबराया, मनोमन चाड़ा जमीन पर पड़ा हुआ था। इसकी सफाई तो वो 3 दिन में भी नहीं कर सकता था। उसने बेलचा उठाया और चाड़े में गाड़ दिया। वो जोर लगाता ही रहा मगर बेलचा टस से मस न हुआ। वो घबरा गया। अचानक उसे अपने दोस्तों का ख्याल आया और उसने आवाज लगाई, मियाँ सुरखपोश आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। यकायक उसने देखा कि सुर्ख लिबास वाला बड़े मियाँ सामने खड़े हैं। उन्होंने हारिस को एक तरफ हटाया और कहा, चलो बेलचे तुम अपना काम करो। बड़े मियाँ के मुंह से ये आवाज निकल नहीं थे कि बेलचे ने अपना काम शुरू कर दिया। तमाम पुराना चारा एक तरफ करके नया चारा भैंसों के आगे डाल दिया गया। चंद मिनटों में ही सारा काम बुढ़िया की मर्जी के मुताबिक हो गया। हारिस ने सुर्खपोश का शुक्रिया अदा किया और बड़े मियाँ खुश वहां से चले गए। सुर्खपोश के जाने के थोड़ी ही देर बाद बुढ़िया भी आ गई। उसने देखा कि सब काम बड़े ही सलीके से किया गया है। उसकी हैरत की इंतहा न रही। इसने कहा, मियाँ लड़के, ये काम तुम खुद से हरगिज नहीं कर सकते थे, इसमें जरूर कोई तुम्हारी मदद किया है, मगर खैर कोई बात नहीं, कल फिर देखा जाएगा। ये कहकर बुढ़िया दरवाजे से बाहर निकल गई। दूसरे दिन सुबह ही सुबह बुढ़िया फिर से आ गई और उसने हारिस से कहा, ये मेरा गद्दा है, इसमें पर भरे हुए हैं। इन परों को बाहर मैदान में ले जाकर धूप दो, लेकिन ख्याल रखो अगर इसमें से एक भी पर कम हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये कहकर जादूगर बुढ़िया फिर गायब हो गई। ये बड़ा ही मुश्किल काम था। हारिस हिम्मत करके उठा, गद्दा बाहर मैदान में ले जाकर रखा, गद्दे का मुंह खोला और परों को धूप पर रख दिया। अभी इसने परों को ढेर किया ही था कि हवा का एक झोंका आया और परों को उड़ा ले गया। एक भी पर बाकी न बचा। अब तो हारिस बहुत घबराया। या इलाही, अब मैं क्या करूं? इस बुरे वक्त में फिर उसे अपने दोस्त याद आए, मियाँ सुर्खपोश, भाई सब्जपोश, प्यारे कबूतरें, आओ जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जैसे ही हारिस ने आवाज लगाई तो सारे के सारे वहां आकर पहुंच गए। कबूतरों ने बिखरे हुए पर चुनना शुरू कर दिए। वो एक एक पर उठा लाए। सब्जपोश और सुर्खपोश ने
उसे गद्दे में भर दिए। फिर सब्ज़पोश ने उस गद्दे में से एक पर निकाल कर हारिस को पकड़ा दिए और कहा कि इसे अपने पास रखो। जब जादूगर बुढ़िया कहे कि इसमें एक पर कम है तो ये उसके मुंह पर दे मारना। सब्ज़पोश ने कहा और फिर वो सब के सब गायब हो गए। शाम को फिर जब जादूगर बुढ़िया वापस आई तो उसका गद्दा बिछा हुआ था। वो इस पर लोटे मारती रही, टटोलती रही और फिर बोली, मियाँ लड़के, इस बार तुम बचकर नहीं जा सकते। मैंने आखिर तुम्हें पकड़ ही लिया, इसमें एक पर कम है। ये कहकर बुढ़िया हारिस की तरफ लपकी। हारिस ने फौरन ही जेब से पर निकालकर इसके मुंह पर दे मारा। ये लो तुम्हारा पर। हारिस बोला, पर बुढ़िया के मुंह पर लगना था कि वो उलट गई। और फिर जब थोड़ी देर बाद उसके होश ठिकाने में आए तो कहने लगी, मियाँ लड़के, तुम अकेले ये काम हरगिज नहीं कर सकते थे, मगर खैर मैं फिर देखूंगी। ये कहा और गायब हो गई। दूसरी सुबह बुढ़िया फिर आदम की और हारिस से बोली, आज तुम इन भैंसों में से एक को ज़िबा करो, इसकी खाल उतार दो और इसका एक बड़ा थैला तैयार करो। इसकी सींगों से चम्मच बनाओ, फिर इसका गोश्त काटकर पकाने के लिए बोटियां बनाओ। मेरे पास 50 भैंसे हैं, लेकिन इनमें से एक सही भैंस ज़िबा करो। अगर तुम ये सब ठीक से कर लिए तो मैं तुम्हें जाने दूंगी और इनाम भी दूंगी, 3 इनामात जो तुम कहोगे। लेकिन अगर मेरे आने से पहले तुम ये ना कर सके तो याद रखो कि मैं तुम्हारा गला घोंट कर तुम्हें मार डालूंगी। ये कहकर जादूगर बुढ़िया वहां से चल दी। अब हारिस फिर परेशान था। इस बार फिर उसने सब्ज़पोश सुर्खपोश की आवाज लगाई। दोनों फौरन ही आ मौजूद हुए। वो अपने साथ एक मोटी ताजी भैंस भी लाए थे। उन्होंने फौरन ही इसे ज़िबा की और छोटी छोटी बोटियां करके ढेर कर दिए। सब्ज़पोश ने उस खाल से एक बड़ा सा थैला बनाया। सुर्खपोश ने भैंस के सींगों से चम्मच तैयार कर दिए। सब कुछ मिनटों में ही तैयार हो गया। हारिस की जान में जान आई। उसने इत्मीनान का सांस लिया। अब हारिस ने उन्हें बुढ़िया की शर्त बताई और उनसे पूछा कि बताइए, मैं बुढ़िया से क्या इनाम तलब करूं? तो उन दोनों ने हारिस से कहा कि तुम बुढ़िया से कहना कि मुझे 3 चीजें दे दो। वो जो तुम्हारे बिस्तर पर है, वो बॉक्स जो तुम्हारे मसेरी के नीचे है, और वो चीज जो तुम्हारे दीवार के पीछे है। ये राय देकर दोनों गायब हो गए। जब बुढ़िया गार में पहुंची तो बड़ी परेशान हुई। लड़के, तुम ये किसी दूसरे की मदद के बगैर हरगिज नहीं कर सकते थे, मगर मजबूरी है। अच्छा बोलो, तुम क्या इनाम चाहते हो? हारिस बोला, वो जो तुम्हारे बिस्तर पर है, जो बॉक्स तुम्हारे मसेरी के नीचे है, और वो जो मसेरी की दीवार के पीछे है। हारिस ने वही जुमले दोहरा दिया। उफ लड़के, यकीनन कोई तुम्हारी मदद कर रहा है, क्योंकि तुम खुद से ये इनाम नहीं पसंद कर सकते थे। मगर क्या करूं, मजबूर हूं। तुमने मेरी जादू की धज्जियां उड़ा दी है। मैं तुमसे वादा कर चुकी हूं, इसलिए अब तुम्हें वही कुछ देना पड़ेगा जो तुम मांगते हो। ये कहकर वो अपने कमरे में गई और एक दरवाजा खोला। अचानक एक खूबसूरत लड़की दरवाजे से बाहर निकल आई। ये बादशाह की शहजादी थी जो अपने बाग में टहलते हुए गायब हो गई थी। अब इसने बिस्तर के नीचे से एक संदूक निकाला और उसका ढक्कन खोल दिया। ये संदूक हीरे जवाहरात से भरे हुए थे। ये लो, ये भी तुम्हारा है, बुढ़िया ने बड़ी मजबूरी से कहा, और आखिर में अपने मसेरी के पास वाला दरवाजा खोल दिया। एक खूबसूरत बागबानी जहाज खड़ा था। बुढ़िया ने कहा, ये एक तिलिस्मी जहाज है। ये बगैर किसी मलाह के तुम्हें उस मकाम तक पहुंचा सकता है जहां तुम चाहो। बस इसे हुक्म देने की देर होती है। अब तुम अपने इनामात लो और अपने घर की राह लो। हारिस ने जवाहरात का संदूक उठाया, शहजादी को साथ लिया और जहाज पर सवार हो गया। संदूक को एक महफूज जगह पर रखा। शहजादी के लेटने बैठने के लिए मुनासिब बंदोबस्त किया और खुद भी बैठ गया। ये एक आसमान पर चंद कबूतरें नमूदार हुई। ये इसके पुराने दोस्त थे। वो जहाज पर मंडलाती रही। उन्होंने कहा, हारिस, खुदा तुम्हें खुश रखे। हारिस ने देखा कि साहिल पर सब्ज़पोश और सुर्खपोश भी मौजूद थे और चिल्ला चिल्ला कर उसे खुदा हाफिज कह रहे थे। हारिस का जी भर आया। उसकी आंखें छलक उठी कि कैसे दोस्त इनसे छूट रहे थे। मुसीबत और बुरे वक्त में काम आने वाले दोस्त। हारिस जहाज में रवाना हुआ और अपने शहर पहुंच गया। बादशाह और मलका शहजादी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने हारिस को महल में ही रोक लिया, लेकिन हारिस ने कहा कि वो सिर्फ एक शर्त पर इस महल में रुक सकता है कि वो अपने माँ बाप को भी यहाँ ले आए और उनके माँ बाप को यहाँ रहने की जगह दी जाए। बादशाह और मलका
فوراً راضی ہو گئے اور حارث اور ان کے ماں باپ سبھی یہاں رہنے لگے۔ بادشاہ نے جلدی حارث کی شادی اپنی شہزادی سے کر دی۔ دوستو، اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔